آیا نمبر 55. 55. فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. تعجبك أعجب يعجب تعجب تمہیں تعجب میں نہ ڈالے. ہاں یہ ایکچولی اس کا تعجب تعجب یوز یہاں ہو رہا ہے، لیکن آجبا ایسا یوز ہوتا ہے کہ حسین، خوبصورت، بہت ہی نرالا بول سکتے ہیں آپ. ایک حدیث بیان کرتی ہوں، آپ کو سمجھ میں آ جاتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں اپنے صحابہ کرام سے، بیٹھے ہوئے رہتے ہیں سب، تو اس میں ایک بات آ جاتی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں بتاؤ کہ کس کا عجب ایمان کس کا ہے، عجب ایمان کس کا ہے. سوال حضور صلی اللہ علیہ وسلم سوال کرتے ہیں، تو انہوں سوچ میں پڑ جاتی ہیں. پہلے تو بولتی ہیں ملائکہ کا، چونکہ ملائکہ اللہ کے قریب رہتی ہیں، عالم بالا دیکھ رہی ہیں، عالم امر دیکھ رہی ہیں، تو ان کا ایمان ہے بہت زیادہ، بہت اونچے لیول کا ایمان. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ریجیکٹ کرواتے ہیں، نہیں. پھر دوسرا ذرا ہمت کر کے بولتی ہیں ہمارا، آپ کے ساتھ ہیں ہمیں، ہمارا آپ کو دیکھ رہی ہیں، وہی دیکھ رہی، ہمارا ایمان عجب، وہ بھی ریجیکٹ کر دیتے. اب جو چل رہا ہے جی دیکھے کہ بغیر دیکھے کہ جو اب ہمیں حوال کرتی ہیں ان ہاں کا ہے. بولیے آپ کو معلوم ہے شاید، بولیے. نہیں یہ پہلے بھی ایک بار آپ بیان کرے مجھے. ہاں صحیح ہے، یاد ہے نہیں، مجھے وہ ٹیسٹ کر رہے ہو. وہ تو کیا کرتی ہے نا، ہمیں نہ اچھا دیکھتے ہیں، وہ ہاں ہمارے کریکٹ سامنے بھی کریکٹ. نہیں گزر رہا ہے. تو جو بغیر دیکھے بغیر سنے ہاں جو ایمان رکھتے ہیں ان کا مقام زیادہ ہے. ہاں وہ کون ہے؟ ہمیں ہم مسلمان، ہمیں ہمیں یہ جو یہ ہے حضور کی جو امت. گزر رہی ہیں ہمیں ہوں، وہ جو تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، وہی نازل ہوتی ہوئی دیکھتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے تھے، آپ کی حیات طیبہ کو غور سے سامنے سے دیکھتے تھے، کھلی کتاب تھی. تو تمہارا ایمان کیسا عجب ہو جا سکتا ہے بھائی؟ میں تو ہوں تمہارے سامنے، تم دیکھ رہی ہے سب. اللہ سے وہی فرشتے آتے ہوئے بھی، فرشتے آتے ہوئے دیکھ تو نہیں رہے، لیکن معلوم تو ہو رہا ہے وہی آ رہی ہے، روز بروز وہی آ رہی ہے، آیتاں اتر رہی ہیں، صورتیں اتر رہی، یہ سب دیکھ رہے ہیں نا. تمہارا ایمان کیسا عجب ہو سکتا ہے؟ خوبصورت. تمہارا ایمان کامل تو ہے، تمہارا لیول الگ ہے، وہ بات الگ ہے. یہ کس کی بات ہو رہی ہے؟ خوبصورت ایمان کی. خوبصورت ایمان وہ ہوتے ہیں جو تمہارے بعد آئیں گے، تمہارے بھائی ہوں گے، جو قیامت تک جو آئیں گے مسلمان، جنہوں نے وہی اترتے ہوئے نہیں دیکھا، مجھے نہیں دیکھا، انہیں صرف کتاب ملی ہے، وہ پڑھ کر ایمان لا رہے ہیں، اللہ پر ایمان لا رہے ہیں، رسول پر ایمان لا رہے ہیں، کتاب پر ایمان لا رہے ہیں. یہ سارا کیسا کتاب، ان کو صرف چند اوراق ملے ہیں. یہی ہے حدیثوں میں، یہی بتا رہی ہے کہ ان کو صرف چند اوراق ملے، وہ نہ رسول کو دیکھے، نہ وہی اترتے ہوئے دیکھے، لیکن یہ جو اوراق اترتی، یہ جو اوراق ان پر پہنچے ان تک، اس پر جو ایمان لا رہے ہیں، وہ ان کا عجب ہے. عجب بولے تو حسین، حسین خوبصورت. یاد آ گیا یہ عجب اس سینس میں یوز ہو رہا ہے، حسین خوبصورت، لیکن یہاں تعجب کے ہی سینس میں یوز ہو رہا ہے. فلا تعجب کا اموال ہوں ولا اولاد، تمہیں تعجب میں نہ ڈال دے ان کے اموال، اموال مال کی جمع، ان کے پاس بہت مال ہے. قریش کے پاس، کفار کے پاس بہت مال تھا، سرداران تھے، بہت مالدار تھے، اور اولاد بھی بہت زیادہ تھے. وہ یدی کون تھے؟ وہ ادی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی پناہ میں طائف سے لے کر آئے، وہ کافر ہی مشرک ہی تھے، لیکن ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چنا. یہاں حکم ہو گیا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا حکم ہو گیا تھا. جیسے ہی آتے، جیسا اب لینڈ ہو گئے تو ایئرپورٹ میں پکڑ لیے جاتے نا، ان کے اوپر ارسٹ وارنٹ ہو گیا رہتا ہے، ان کو پکڑ لیتی نا. وہی سا حکم ہو گیا تھا کہ جیسے ہی یہ مکہ کے سر زمین پر قدم رکھے محمد، انہیں پکڑ کر قتل کر ڈالنا ہے. یہ حکم صادر ہو گیا تھا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرے، تب ضمانت کا، ان کے پناہ میں آنے کا وہ ایک رواج تھا، اور وہ پناہ قبول بھی کی جاتی تھی. تو یہ عدی جو تھا، یہ قبیلے میں کہیں دور کا کچھ یہ ہو رہا ہے، کچھ نسبت ہے. تو اس کے 12 بیٹے تھے، ہٹے کٹے نوجوان، کڑیل نوجوان، 12 بیٹے. تو اسے میسج بھیجا کہ آپ کی پناہ میں مجھے مکہ پہنچا دیجئے، میں طائف میں ہوں. تو انہیں کیا کریا عدی،
अपने पूरे बेटों को, पूरे 12 लड़कों को पूरे हथियार से लेस नंगी तलवारें लटका कर, खुद भी सामने, अपने बच्चे पीछे, 12 नौजवान, उनके साथ और कितने भी आए होंगे, तो सबको लेकर गया और अनाउंस करते हुए मोहम्मद मेरी पनाह में है, मोहम्मद मेरी पनाह में है, ये अनाउंस करते हुए जाकर लेकर आए। तो यहाँ कहा जा रहा है कि वो माल और औलाद पर बहुत उनको नाज भी था, और वो काम भी आते थे। उस वक्त जरूरत थी, दौरे जहालत में छापे पड़ते थे, हमेशा के दंगे फसाद लड़ाइयाँ खूरेजी ऐसा होता था ना, तो वो उन्हें बहुत नाश करते थे। तो यहाँ अल्लाह कह रहा है उनके माल ही बहुत ज्यादा दिया गया है उन्हें, अल्लाह ने ही दिया है, अमवाल भी है, औलाद भी है बहुत ज्यादा, बेटे भी हैं, वो तुम्हें ताज्जुब में ना डाले। इन्नमा युरिदुल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम बिहा फिल हयाति दुनिया व तज़हक़ अनफुसुहुम व हुम काफिरून। इनको इसी से अल्लाह आजमाएगा, तुम्हें उनके माल और उनकी औलाद की कसरत जो है वो तुम्हें ताज्जुब में नहीं डालना चाहिए, तुम्हें उससे ताज्जुब नहीं होना चाहिए। अल्लाह तो ये चाहता है कि युरिदुल्लाहु, अल्लाह ये चाहता है कि उन्हें इन्हीं चीजों से उनकी दुनियावी जिंदगी में अजाब दे, अजाब दे। दुनियावी जिंदगी में ये अजाब का बाइस बनती, अल्लाह ये चाहता है। और एक कायदा कुल्लिया भी आप सोचे तो अल्लाह पे पिछली एक आयत में बोल रहा है, क्या चीजें मुसलमान के वास्ते भी फितना है? दो ही चीजें फितना है, क्या चीजें? माल है, और औलाद और माल, माल और औलाद। औलाद और माल, माल। ये माल, दो ही चीज मोमिन की भी पाँव की बेड़ियां, बेड़िया, फितना। ये अगर सही है, बच्चे अगर दीनी औलाद, जन्नत में ले जाने वाली औलाद हो गई, तो हमारे वास्ते ये बहुत बड़ा असासा। वरना क्या, सौहाने रू, यही सौहाने रू बन जा सकता है। और माल जमा जमा को, कमा कमा को फुर्सत नहीं, जैसा जो कमाती, अल्हाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर, खबर में गया तो भी चैन नहीं रहता। इन्हों कैसा करती कि पीछे जो कमाया रहता है उसे दर्द रहता है, जो मिल गया माले गनीमत के जैसा जो मिल जाता है तरके में, उसे क्या दर्द रहता है। उन्हें किस तरीके से करता है, अगर जन्नती औलाद हो तो वो ठीक तरीके से खर्च करेगा, आपकी कोई वसीयत हो तो वो भी पूरी करेगा। वरना ऐश परस्ती में, दुनिया परस्ती में अगर चला गया तो क्या हुआ, ये फितना हो गया नहीं, ये वहां भी चैन से रहने नहीं देगा ना, वहां भी चैन नहीं मिलेगा। तो ये आयतें दुनियावी माल व दौलत के बारे में एक बड़ी अजीम हकीकत की तरफ इशारा कर रही है। इस्लाम की तालीम यह है कि माल और दौलत बजाते खुद कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे इंसान अपनी जिंदगी का मकसद हयात बनाए। माल अल्लाह देता है, जितना देना उतना ही देता, वही मैं पहले बताई कि मुकद्दर में यही चीज होती है कि माल दौलत घर कोठी बंगला वहदा इज्जत नाम नमोद शोहरत जो भी देना है नी, ये सब मुकद्दर है। कितना मिलना ये मुकद्दर है, इससे ज्यादा नहीं मिलता। क्या नहीं तय किया अल्लाह बोले तो, तुम्हें दुनिया में रहकर आमाल की किस मेराज को पहुंचती, हाँ, आमाल तुम्हें कितना करती, कहाँ तक जाती, जाओ, उसमें कोई ये नहीं है, उसमें कोई हदबंदी नहीं करे अल्लाह। ये मुकद्दर करता लिया, ये हदबंदी करता लिया, ये जितना 120 डेज में आ गया उतना अच्छी, उससे ज्यादा नहीं। लेकिन ये आमाल के में कितना सदका करती हैं, क्या क्या करती हैं, कितने नवाफिल पढ़ती हैं, कितने रोजे रखती हैं, या क्या क्या तुम्हें अल्लाह की राह में जाकर अलम बरदारी करती हैं, दीन की इशाअत करती हैं, कहाँ कहाँ निकलती हैं, कहाँ कहाँ जाकर अल्लाह के दीन को फैलाती हैं, तुम्हें ये सब काम भी रोक नहीं है, हदबंदी नहीं है, खुला मैदान है, ये खुला मैदान, इसमें नहीं है। है बोले तो किसमें, दौलत में, माल में, और औलाद में, और ये जो इज्जत ये वो मिलना है उतनी ही मिलेगी जितनी अल्लाह ने मुकद्दर कर, उससे ज्यादा आप एड़ी चोटी का जोर लगा ले, ये चीजें नहीं मिलेंगी। तो यहाँ क्या बताया जा रहा है, जिसे इंसान अपनी जिंदगी का मकसद बनाए। इंसान का असल मकसद जिंदगी क्या होना चाहिए, अल्लाह ताला की खुशनुदी का हुसूल और आखिरत की बेहतरी का सामान, ये करना चाहिए। थोड़ी सी मुद्दत है, 3 घंटे का पीरियड है, इम्तिहान है, तो हमें ये टाइम वेस्ट नहीं करना ना, हमारा टाइम बहुत वेस्ट हो जा रहा है, अल्लाह हिफाजत फरमाए। अलबत्ता चूंकि दुनिया में जिंदा रहने के लिए माल की जरूरत है ना,
कि है ना। आगे धन से राजी तो नहीं करना, माल की हाँ जरूरत है। वो अबू जर गफ्फारी के मामले में आ गया नहीं। अबू जर गफ्फारी वो जो थे, उन्होंने जो कबीला डाकुओं के कबीले से थे, उन्होंने जो इस्लाम ला लिया, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़ा फख्र किया करते थे कि एक डाकू का कबीला, एक राजधानी करने वाला, उन्हें इस्लाम ला लिया। और कैसा इस्लाम लाया, बड़े मुत्तकी परहेजगार हो गए थे। तो उन्होंने लंबा भी जिए। हजरत उस्मान गनी के पीरियड में उनको जिला वतन कर दिया, जाओ तुम्हें यहाँ नको रहो, फितना हो रहा है लोगों में। उन्होंने क्या अटल फैसला क्या कर दिए थे, और लोगों में फैलाते भी थे क्या, सोना चांदी नहीं रखना, सोना चांदी जमा को ये नहीं भी रखना। उसके बाद तो उनको हजरत उस्मान गनी भगा दिए, मदीने से जिला भगा दिया। वहां कुटिया बनाकर रह रहे थे, और वहां एक शाहरा पर रह रहे थे वो, उन्होंने, उनका बेटा, उनकी बीवी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये पहले ही कह दिए थे, जब जंग तबूक में आ रहे थे, ग़ज़वा तबूक में आ रहे थे, तो अकेला जब ऊंट बढ़ गया, तो अकेला पूरा सामान उठाए हुए जब आ रहा था, तो दूर से आते हुए देखकर एक मंजिल पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा उनको देखकर कि अकेला ही ये मर जो जाएगा। सवारी है, हाँ, ये अकेला रहेगा, अकेला जिएगा, अकेला आएगा, अकेला ही मरेगा। मरेगा। वैसा ही हुआ वो। हाँ, तो इसलिए जायज जराए से कमाना, उसका हासिल करना, हलाल तरीके से कमाना, ये कोई गलत बात नहीं है, ममानियत की बात नहीं है। कमाई तो ना अल्लाह की राह में खर्च करती हैं, अल्लाह की राह में खर्च करना हमारे वास्ते बहुत बड़ा सवाब का काम है। हजरत अब्बास कहा करते थे कि मैं कमाना चाहता हूँ, खूब कमाना चाहता हूँ, ताकि मैं अल्लाह की राह में खर्च कर सकूं। तो ये इरादा रखो कमाना, या लोगों की मदद के लिए कमाना, या अपनी खुद जिंदगी सही तरीके से ढंग से गुजारना, इसके वास्ते कोई ममानियत नहीं है। इसे ही मुकद्दम समझना, इसी के पीछे पड़ जाना, इसी को कमाने के इसमें तग्गो दव में लग जाना, और ना घर का ख्याल, ना अपना ख्याल, ना चैन सुकून का ख्याल, ये जो है ये मना है। इसलिए जायज जराए से इसको हासिल करना ये बात ठीक है, ये इसमें कोई ममानियत नहीं है। लेकिन यहाँ भी ये बात नहीं भूलनी चाहिए कि दुनिया की जरूरत पूरी करने के लिए भी माल अपनी जात में कोई फायदा बराह रास्त नहीं पहुंचाता, डायरेक्टली उन्हें बेनिफिशियल नहीं होता, पैसा बेनिफिशियल नहीं होता, बल्कि वो राहत व आराम के वसाइल हासिल करने का जरिया बनता है। लेकिन जब इंसान माल को बजाते खुद मकसूद जिंदगी बना लेता है, और हर वक्त उसी फिक्र में पड़ा रहता है कि माल की गिनती में किस तरह इजाफा हो, तो वो बेचारा ये भूल जाता है कि उसने इस फिक्र में अपनी राहत व आराम तक को कुर्बान कर डाला है। बैंक बैलेंस में बेशक इजाफा हो रहा है, लेकिन ना दिन का चैन मयसर है, ना रात का आराम, ना बीवी बच्चों से बात करने की फुर्सत, ना घर का, ना अपनी सुध है, ना आराम के वसाइल से मजा लेने का वक्त है, कुछ भी नहीं। ये फायदा नहीं है इससे, इन्हें जो कमा रहे उससे खुद भी फायदा नहीं उठा रहे, मुसीबतों में पड़ा हुआ है। फिर अगर कभी इस माल में नुकसान हो जाए तो रंज और गम के पहाड़ टूट पड़ते हैं, क्योंकि ये तस्वुर तो है ही नहीं कि इस नुकसान का बदला आखिरत में मिल सकेगा। क्या भी नुकसान होता है तो क्या दुआ पढ़ना, कुछ भी इन्ना नुकसान। लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, इन्ना और लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हाँ, और एक उसके साथ एक और पढ़ना है, हस्बुनल्लाह नहीं, निअमल इन्ना वकील। लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन हाँ, व अखलुक़ु खैरम मिन्हा। हाँ, हम्म कोई मुसीबत ये जो मुसीबत पड़ी है अल्लाह, इसकी बेहतरीन मुझे अजर अता अता कर। फरमा, इसका बेहतरीन अजर अता फरमा। ये हजरत उम्मे सलमा कहती नहीं, उनका ये है नहीं, जब उनके हाँ, हस्बैंड का इंतकाल इंतकाल हो हुआ गया तो था। हाँ उनके शोहर हाँ, का। हाँ, हाँ उनके, हाँ, तो उन्होंने ये दुआ हाँ पढ़ी, हाँ मतलब उन्होंने सोचे नहीं रहते कि अबू सलमा हम्म, तो बहुत अच्छा शौहर था, वैसा शौहर मुझे मिल सकता है क्या, या उसका नेम और बदल कोई अच्छी चीज मुझे मिल सकती है क्या, हो ही नहीं सकता अगर को मैं हाँ, सोची थी। लेकिन क्या हुआ, हुजूर खुद के साथ उनका निकाह होता ना। हाँ, वो तो अचानक की ज़ौजियत में आ गया। मैं हाँ, आ जाती। माशा। तो बदला आखिरत में इसका मिल सकेगा। इस तरह अगर गौर से देखो तो ये माल और दौलत नेमत बनने के बजाय इंसान के लिए दुनिया ही में अजाब बन जाता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। कमाना, हलाल तरीके से कमाना, और उसे तरीका कार खर्च करने का, 3 सवालात का जवाब दिए बगैर कोई अपनी जगह से हिल नहीं सकता। रोजे मशर क्या क्या सवालात हैं वो, पहला सवाल क्या है, मन जिंदगी रब्बुका का है। मन दीनुका।
और मन रब्बु का कैसा मंदी। वो तो खबर में हो जाता है, हाँ खबर वो में। खबर अच्छा में हो अच्छा। जाता है, जब रोजे महशर में। रोज से वो महशर में। वो माल कैसा कमाए, हाँ माल कैसा कमाए, कैसा खर्च पैसा करे। खर्च करे। हाँ हाँ सही। दूसरा सवाल ये, दूसरा सवाल, पहला सवाल में क्या था? हाँ माल दिन पर कैसे जिंदगी, जिंदगी 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 कितनी मिली, कैसा खर्च करे। करे। आराम से गद्दियां पर बैठ को टीवी देखो, इधर उधर फिर को, सैरो तफरी, सैर सपाटे, सयाहत में उधर है या नहीं। दिन के, मेरे दिन की भी कुछ करे क्या इशात? वो एक है, देखो क्या है वो, क्या है भाई, अल्लाह, मैं अल्लाह जो बोलता है कि मैं हर पुकारने वाले की पुकार को सुनता हूँ, चाहिए कि वो भी मेरी पुकार को सुने। क्या पुकार अल्लाह की? अल्लाह की पुकार यही है कि मेरे दीन की तरफ आओ, मेरे मेरे तरफ दीन का काम आओ, करो। मेरे तुम्हें तरफ आओ। जिंदगी दी गई है, ये तुम्हारी जिंदगी, तुम्हारी अपनी भी करना है, बच्चों को भी देखना है, कमाना भी है, खाना भी है, लेकिन उसके साथ मुकद्दम क्या है? दीन की अलमबरदारी करनी दिन की है। बरदारी। क्या क्वेश्चन होगा? लतुसअलुन्ना यौमइज़िन अनिन नईम, अनिन सूरह नईम। तकासुर। तुम्हें जो कुछ भी दिया गया है, माल दौलत, बच्चे, सेहत, तंदुरुस्ती, लियाकत, सलाहियत, इल्मियत, हाँ, जिस्मानी सेहत, ये जो कुछ भी दिया गया है, इसका अल्लाह कैसा की खर्च गनीमत। हुआ? क्या खाली दुनिया कमाने में खर्च करे, सैर सपाटे में, घूमने फिरने में करे? कैसा नहीं, मेरा भी कुछ काम करे, मेरे दीन का भी कुछ काम करे। दो ये कायदा कुलिया ये है कि अगर जैसा मदीने मुनव्वरा में रियासत कायम हो गई, खिलाफत राशिदा में जैसा बोलबाला रहा इस्लाम का, अगर वैसा रहा तो मुसलमानों के ऊपर कोई ज्यादा पाबंदी नहीं है। आराम से रह सकता है, आराम से खाना पीना, 5 वक्त की नमाज, ये जो भी है ये कर सकता है। दिल की हमें अलम बरदारी जितनी कर सकता है वो कर सकता है। लेकिन अगर मक्की दौर है, दीन मगलूब है, दीन मगलूब है, आज दीन मगलूब है, हाँ, दीन गालिब नहीं है, मुसलमानों सरफराजी में नहीं है, तो तब क्या है? तुम्हारे शबो रोज जो है ना, ये नॉर्मल नहीं हो सकते। तुम्हें फिक्र दीन की होनी चाहिए। तुम्हारे तकरीबा, तुम्हारे शादियां, ऐशो इशरत की जिंदगी नहीं कर सकते, नहीं करना नहीं कर सकते, मना है, मना है। शमसी, जी एक बहुत अच्छा डिबेट वायरल हो रहा है, देखें क्या सब लोग? ये जावेद अख्तर के खिलाफ, हाँ, डज गॉड एग्जिस्ट बोल को। देखे देखे नहीं, उसके बारे में क्या है पता नहीं चल रहा क्या। बहुत अच्छा, हाँ, उसके बारे में हाँ एनालाइज जो करी ना, पूरे जितने भी हमारे रिलीजियस लीडर्स, माशाल्लाह, बहुत सारे अब इस्लाम कबूल कर ले रही, घर को सुनने में आ रहा है, एथिस्ट जो थे। हाँ हाँ, कोई होता है जो भी करता है अल्लाह भलाई के वास्ते करता है सो। हाँ माशाल्लाह, वो बोलती कि ही वॉज एन अननोन पर्सन ना, ये 27 ईयर ओल्ड के जो मुफ्ती थे, अल्लाह मियाँ शमाइल, हाँ मुफ्ती, हाँ, तो अल्लाह मियाँ उनको मतलब ये कर दिया, और जो हाँ जो फेमस थे उनको इनफेमस कर दिया बोलको। फेमस करवा दिया। एक कश्मीरी नौजवान आदमी, उनको ला लिया अल्लाह, और उनको जल्ला बना दिया, उनको चुन लिया अल्लाह इस्लाम के माशाल्लाह इशाअत के वास्ते चुन लिया। हाँ, बहुत अच्छा वो हुआ इस्लाम के वास्ते। सुने, सब मिलकर बैठ को सुने, वो सब मिलकर हाँ, सब सुना, बहुत अच्छा, हमें भी वो बहुत इंटरेस्टिंग था वो, माशाल्लाह, और बड़ी ही विजडम, हिकमत के साथ उन्होंने आंसर्स दिए, वो है सो। अल्लाह उनको इतनी, हाँ वो चला उनको इतनी विजडम दिया, नहीं उन्होंने वेस्ट बंगाल के, वेस्ट बंगाल की, हाँ वेस्ट बंगाल के, वहां के चुनो मुफ्ती, बट इज ए वेरी हाईली लर्नड पर्सन माशाल्लाह, और नॉट लाइक नॉर्मल, क्या बोलते हैं, एक रिलीजियस लीडर की तरह नहीं बात करे उन्होंने, विद ग्रेट विजडम बात करे, नहीं उन्होंने, बहुत अच्छा रहा वो। हाँ माशाल्लाह, उन्होंने प्रोटोटाइप नहीं बोले, जैसा एक मुल्ला बोलता है नहीं वैसा नहीं बोला उन्होंने, वैसा नहीं बोले, वो बोले सो एक लेक्चर देने के अंदर। हाँ हाँ, बहुत अच्छा हुआ वो, माशाल्लाह।
लेकिन नहीं, वैसे आदमियां जो है नहीं, उन्होंने लाना बोले तो अल्लाह हिदायत देना से उनको। उन्हें हिदायत दिया, लड़के बिल्कुल। क्या उम्र उसकी जावेद अख्तर की? 27 कौन उन्हें बुढ़ा उन्हें 70 प्लस 80 90 एंड अबव ने 80 हो क्या 90 80 के ऊपर थे के अबव होंगे उन्हें मेरे ख्याल से। हम्म, ही इज जस्ट 27 यू नो मुफ्ती साहब तो जस्ट 27 हाँ हाँ 27 माशाल्लाह यंग उनकी फसाहत, बलागत, हम्म उनकी इल्मियत नोटवर्दी थी वो, रियली हाँ माशाल्लाह बहुत अच्छा था। वेरी नाइस एंड इट इन्फ्लुएंस्ड लॉट ऑफ पीपल वो बहुत अच्छा हम्म हुआ हम्म। बहुत ऐसा और सोचा थे इट देखो वो अल्लाह बुरा में समझती बहुत जबरदस्त उनसे अल्लाह सर्विस ताला लिया ने। अल्लाह उनसे हाँ हाँ हाँ। अब उन्होंने आगे भी उनको एक ये मिल गया इम्पटस उनको, अब आगे भी उन्होंने हाँ बहुत हाँ कुछ कर सकते हैं, जैसा जाकिर हाँ नायक हाँ आएंगे ना। हाँ वैसा 3 वो तो मिलियन फॉलोअर्स का थे ओवरनाइट उनके हाँ माशाल्लाह अब ये क्या करे एंड यू जैसा नो अल्लाह प्रोफेट। उनकी हिफाजत कर। आगे प्रोफेट क्या आमीन है बोलो, खुर्ब क़यामत, खुर्ब क़यामत कमा अपनी आगे आना है ना। खुर्ब क़यामत हम्म जोक दर जोक मुसलमान हो जाते, हो एक जाए। भी हाँ काफिर नहीं रहता, एक भी काफिर नहीं रहता आगे। हाँ अब चंद साल हम्म में खिलाफत राशिदा अला मिनहाज नबुवा, अला मिनहाज हाँ नबुवा, हाँ वो कायम होती है, माशाल्लाह कायम होने का अल्लाह की तरफ से अल्हम्दुलिल्लाह वादा है। वो कितने के साल चलती है वो, पर्टिकुलरली इतना करको हाँ नहीं है, 40 ईयर्स करको बोलती हैं वो, वल्लाहु आलम वो हम्म पीरियड वो चलती है, हम्म बहुत अच्छा रहता है। तब मुसलमानों का दौर दौर रहता है, इस्लाम गालिब रहता है, कोई काफिर नहीं रहता। हाँ उसके बाद फिर थोड़ा ढील आ जाता है, फिर लोग है ना कुफ्र की तरफ, कोई शिर्क की हम्म तरफ जाने लगते हैं। बाद में रोजे महशर किस पर बर्पा होता है क़यामत बोले तो एक भी मुसलमान नहीं रहता तब। ये नहीं खुदा रहता की है, जो रहे सहे मुसलमान को भी सुला देती है, मौत की नींद, आराम की नींद सुला देती है। उसके बाद यह महशर बर्पा होता है। तो ये सच मैं क्या पेशेंट गोई आई है। अच्छा, हाँ कंटिन्यू माशाल्लाह करेंगे इंशाल्लाह। सुभान अल्लाह व बिहम्दिही, सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अन्ता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। सुभान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम वालेकुम सलाम सलाम व रहमतुल्लाहि व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।